Hello students, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will take chapter number 3 and chapter number 4 of matrix algebra. Okay, इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स पूरा का पूरा खत्म कर देंगे और 3 और 4 नंबर का चैप्टर दोनों चैप्टर इसी लेक्चर में हम खत्म कर देंगे। 3 नंबर का चैप्टर बहुत छोटा है, मैंने हर एक टॉपिक का एक एक एग्जाम्पल लिया है सिर्फ, क्योंकि ज्यादा एग्जाम्पल लिए तो वीडियो लंबा हो जाएगा और सिलेबस भी जल्दी खत्म नहीं होगा। तो हर एक टॉपिक पे एक एक एग्जाम्पल लिया है, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो थर्ड नंबर का चैप्टर है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ओके वेट, ओके, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। सो थ्योरम देखो, उसमें आपको दिख रहा है क्या, बड़ा करूं? ओके, a square matrix A is invertible if and only if determinant of A is not equal to 0। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स तभी इन्वर्टिबल हो सकता है if and only if determinant of A is not equal to 0, then the matrix is invertible matrix. Okay, example देखो, use determinant to find out if the matrix is invertible or not. First we need to find determinant and then we conclude that the matrix is invertible or not. Okay, let's find the determinant. So you already know that how to find determinant. Okay, the determinant of the matrix is 0, then the given matrix is not invertible, because invertible matrix condition said that determinant of A is not equal to 0, then the matrix is invertible. So in our example, the determinant of matrix is 0, then the matrix is not invertible. Okay, invertible matrices, the inverse of matrix and A and n by n matrix A is said to be invertible if there exists an n by n matrix. Okay, C such that AC is identity matrix and CA is identity matrix. The matrix C is called the multiplicative inverse. Matrix C is called as the multiplicative inverse of matrix A, and it is always determined uniquely. Okay, C is a multiplicative matrix and it is inverse of A, and it is always determined uniquely. A matrix which is not invertible, it is called singular matrix. So non-invertible matrix is known as singular matrix and invertible matrix is known as non-singular matrix. Okay, the following theorem states that the properties of an invertible matrix. Okay, let's see the properties of invertible matrix. Okay, theorem: if A and B are invertible matrices, then first one is matrix A is invertible and A inverse of inverse is equal to A. Second one is AB is invertible and AB inverse is equal to B inverse into A inverse. Third one is A transpose is invertible and A transpose inverse is equal to A inverse transpose. Okay, theorem देखो, next one theorem is an n by n matrix A is invertible if and only if A is row equivalent to identity matrix In. If n by n matrix A is invertible if A is row equivalent to identity matrix. Okay, now we state that the algorithm for finding A inverse of matrix A. First step is, given matrix is an invertible matrix, form an augmented matrix. Next step में हमें augmented matrix form करना है. Apply elementary row operation to AI to obtain IA inverse. Okay, example देखिए, let A is equal to, the given matrix is denoted by A, then find A inverse by row reduction method. We want to find A inverse by row reduction method. Okay, so let's find. So first we write augmented matrix AI. Okay, so this is A matrix and this is I matrix. Okay, let's combine these two matrix, then we form row reduction operation. So we form R2 plus 3, we perform R2 plus 3 R1 operation and R3 minus 2 R1 operation. You already know that how we perform row operations. Okay, in first chapter we will see row echelon form, row reduced echelon form. Okay, first or second chapter. So you already know that how to perform row reduction operation. When we perform R2 plus 3 R1 and R3 minus 2 R1 operation, we will get this matrix. Then we need to zero this element, because the pivot element is 1 and below the pivot element minus 3. So we need to make minus 3 0. Then we perform R3 plus 3 R2 row operation. Then we get this matrix. Okay, then we need to make this to 1 because pivot element is
वन, ओके, पिवोट एलिमेंट हमें वन चाहिए, तो हमें इस टू को वन करना पड़ेगा. सो हाउ टू गेट टू टू वन? सो वी परफॉर्म R3 डिवाइड बाय टू, देन वी गेट दिस मैट्रिक्स. ओके, देन we need these two elements also zero because रो रिड्यूस इकोलन फॉर्म में हमें पिवोट एलिमेंट के ऊपर के एलिमेंट भी जीरो चाहिए होते, तो हमें ये दोनों एलिमेंट भी जीरो करने पड़ेंगे. देन वी परफॉर्म R2 प्लस 2 R3 ऑपरेशन एंड R1 प्लस 2 R3 ऑपरेशन, देन वी गेट जीरो. ओके, ये दोनों एलिमेंट हमारे यहाँ पे जीरो हो गए. ओके, और हमें ऐसा मैट्रिक्स मिल गया. देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स में अभी हमें ये मैट्रिक्स लिखना है, तो हमें ए इनवर्स मिल गया. ये हुआ हमारा ए इनवर्स, यहाँ पे देखो ये हुआ ए इनवर्स. ओके, टू फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, अभी हमें एडजॉइंट मेथड से इनवर्स ढूंढना है, तो कैसे ढूंढते हैं? ये लास्ट मेथड है इस चैप्टर की. ओके, दो तीन ही मेथड है, दो तीन थ्योरम है और एक मेथड है. ओके, सो दिस इज एडजॉइंट मेथड फॉर्मूला. ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. ओके, फर्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड. हमें ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसका हमें इनवर्स मैट्रिक्स ढूंढना है. First we write, we calculate determinant. A inverse is exist or not. First we want to check A inverse is exist or not. If A inverse is not exist, then we do not find inverse of matrix. Okay. If A inverse is exist, then and then only we find inverse of given matrix. So we need to find given matrix determinant. So determinant of given matrix is 11. Determinant of A matrix is 11, which is not equal to 0. Then A inverse is exist. If A inverse is exist, then and then we find inverse of matrix. Okay, so we need to find minus for adjoint of A. हमें यहाँ पे adjoint of A ढूंढना है, तो हमें माइनस एंड कोफैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे. तो माइनर कैसे ढूंढते हैं? फर्स्ट वन इज M11. M11 मतलब दिस पोजीशन, M12 मतलब दिस, M12 मीन्स दिस पोजीशन, M21 एंड M22. ओके, सो M11 कैसे फाइंड करेंगे? सो वी नीड टू फाइंड M11, देन आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड M11. M11 हमें ये एलिमेंट लेना है M11, तो ये कॉलम और ये रो डिलीट करनी है, बचा 4, तो 4 हमने यहाँ पे लिखा. M12, सो M12 मैं इसे फिर से इरेज करता हूँ. M12 कैसे निकालेंगे? ये एलिमेंट मतलब M12, तो ये और इसे डिलीट करना है. ये हुआ -3, ये -3 है, यहाँ पे -3, सॉरी. ओके, तो हुआ -3. ओके, तो अभी M21 मतलब ये, तो ये रो और ये कॉलम. ओके, ये कॉलम और ये रो डिलीट, तो बचा 1, तो यहाँ पे आया 1. M22 फिर से बताता हूँ, M22 कैसे, मैं एक ही बार बताऊंगा माइनस कैसे फाइंड करते हैं, आगे मैं बताने नहीं वाला. ओके, M22 मतलब ये पोजीशन, तो ये और ये डिलीट, बचा ओनली 2, तो 2 इज M22. माइनस फाइंड किए, तो को फैक्टर कैसे फाइंड करने? को फैक्टर फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो 4 है ना, अगर इन दोनों के एडिशन इवन हुई तो वैसे का वैसा लिखना है. इन दोनों के एडिशन अगर और आई तो सिर्फ साइन चेंज करना है. ओके, मतलब 1 + 1, यहाँ पे C11 है ना, मतलब को फैक्टर 11, कॉलम 11, तो 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है, तो 2 इज इवन. देन एंड देन राइट M11 इज इक्वल टू C11. देन C12, 2 + 1 3, एडिशन इज ऑड, देन चेंज ओनली साइन. ओके, तो यहाँ पे 4 जैसे का तैसा आया, यहाँ पे -3 है तो +3 हुआ, यहाँ पे 2 + 1 3, तो यहाँ पे +1 का -1 हुआ, और 2 2 4 होता है, तो इवन नंबर है, तो ये हुआ वैसा का वैसा 2. तो को फैक्टर ऑफ ए इज 4 3 -1 2. एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए को फैक्टर का ट्रांसपोज लेना है. ओके, सो ट्रांसपोज इज दिस 4 -1 3 2. ट्रांसपोज कैसे लेते हैं आपको पता है. ओके, मैं अभी बताने नहीं वाला क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है. सो ए इनवर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला, इसमें हम अभी वैल्यू डालेंगे, ये वाला फॉर्मूला. ओके, ये वाला, इसमें हम वैल्यू डालेंगे. ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए. डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 11, 1 अपॉन 11 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए इज दिस मैट्रिक्स. सो व्हेन वी कैलकुलेट दिस इक्वेशन, हमें 11 से इसे मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड कर देना है. ए इनवर्स इज इक्वल टू
दिस मैट्रिक्स, हमें ए इनवर्स मिल गया। उसी तरह 3/3 मैट्रिक्स के लिए ये एग्जांपल सॉल्व किया है, डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया, डिटरमिनेंट इज -1 which is not equal to 0, then A inverse is exist. If A inverse is exist, then and then only we calculate the inverse of matrix. Okay, then we find minors, then we find cofactor of A, then we find adjoint of A, and then we put the value in formula. A inverse is equal to 1 upon determinant of A is -1 into this matrix. So we get A inverse is equal to this matrix. Okay, ओके यहाँ पे चैप्टर खत्म हुआ। दिस इज वेरी इजी एंड सिंपल चैप्टर, वेरी शॉर्ट, इजी, सिंपल। ओके, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, 2-3 थ्योरम और 1-2 मेथड से। ओके, सिर्फ इनवर्स ही फाइंड करना है, सिर्फ मेथड चेंज हो रहे हैं, हमें पूरे चैप्टर में इनवर्स ही फाइंड करना है, दूसरा कुछ नहीं। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। 4th नंबर चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन। ओके, ये भी हम फटाफट फिनिश कर डालेंगे। ये थोड़ा बड़ा है, इतना भी बड़ा नहीं है, एकदम इजी है। इसमें हमें कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, गॉस एलिमिनेशन मेथड, एलयू डिकम्पोजिशन, क्रैमर्स रूल, ये सब पढ़ना है। ओके, एकदम इजी है। हर एक टॉपिक का मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर नंबर 4 इज लीनियर इक्वेशन। सो व्हाट इज मीन बाय लीनियर इक्वेशन? In 12th standard या or 10th 11th standard you listen about linear equation, quadratic equation. Okay, so linear equations means a linear equations in the variable x1, x2, x3 up to xn is an equation that can be written in the form of a1 x1, a2 x2, a3 x3 plus a up to an xn is equal to b, where a1, a2 up to an belongs to R. Okay, linear equation. For example, x plus y is equal to 2, 3x1 plus 2x2 minus x3 is equal to 1. In simple form, डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज 1। अभी डिग्री क्या है ये मत पूछना, डिग्री आपको पता है, डिग्री मतलब पावर। ओके, द कलेक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। द कलेक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, कलेक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दोनों एक ही है, बताने का क्या है उसमें। देन टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंट सिस्टम, सेकंड वन इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। बड़ा करूं क्या? सॉरी, याद नहीं रहा मुझे। ओके, कंसिस्टेंट सिस्टम मतलब क्या, देखते। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज आइदर यूनिक, मैं इसे हाईलाइट करता हूं ताकि आपको समझ में। ओके, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज आइदर यूनिक सॉल्यूशन और infinitely many solutions, then the system is said to be consistent system. ऐसी सिस्टम जिसमें एक तो यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, उसी को हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट वन इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इफ द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, देन द सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, ये आपको याद रखना है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या, एकदम इजी। कंसिस्टेंट सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम में नो सॉल्यूशन। ओके, इजी वे, अपना स्मार्टली याद रखो, ऐसे रट्टा वगैरह मत मारो, आपको याद नहीं रहेगा। स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। ओके, आगे बढ़ते। फर्स्ट मेथड इज गॉस एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो गॉस एलिमिनेशन मेथड से हमें सिस्टम सॉल्व करनी है। ओके, चलो तो फिर देखते। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, कैसे सॉल्व करनी है, अभी उसके स्टेप बता देता हूं पहले। स्टेप 1 में क्या करना है, राइट द गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म, दैट मींस ax इज इक्वल टू b। हमें जो सिस्टम दी गई है उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। देन स्टेप 2, कंसीडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, दिस इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, एंड रिड्यूस इट इनटू रो इक्विवेलेंट फॉर्म बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। फिर से रो ऑपरेशंस आए, देखो कितनी बार रो ऑपरेशंस आ रहे हैं, अभी आप रो ऑपरेशंस में एक्सपर्ट हो जाने चाहिए। ओके, तो हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करना है। ओके, यूज द बैक सब्स्टिट्यूशन। स्टेप 3, यूज द बैक सब्स्टिट्यूशन, फाइंड आउट द वेरिएबल। बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको वेरिएबल फाइंड करने। वेरिएबल मतलब क्या है, एक्स वाई जेड, जो भी लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं उसे हमें बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करना है। मतलब क्या, सब्स्टिट्यूट करना है। अगर एक्स की वैल्यू मिली तो इक्वेशन 1 में डाल दो, वाई की मिल जाएगी, जेड की मिली तो 3 में डाल दो, वाई की मिल जाएगी या फिर एक्स की मिल जाएगी। ऐसे कुछ सब्स्टिट्यूट करके हमें वैल्यू निकालनी है। ओके, एकदम इजी।
एकदम फालतू है ये चीज। ओके, इसमें कुछ इतना डीप नहीं है। ओके, एकदम इजी। चलो देखते क्वेश्चन, आपको एग्जांपल पे ज्यादा समझ में आएगा। मैं एग्जांपल बताता हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। 99% क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन आएगा। गॉस एलिमिनेशन मेथड से हमें लीनियर सिस्टम सॉल्व करनी। ये तीनों इक्वेशन दिए गए 1, 2 एंड 3। तो अभी फर्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप याद करो तो क्या बताया मैंने। राइट द गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। Ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में हमें मैट्रिक्स फॉर्म में सिस्टम लिखनी है। तो सिस्टम कैसे लिखनी है, यहाँ पे देखो। अभी राइट द गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म यहाँ पे लिखिए। देखो Ax इज इक्वल टू बी। अभी a कैसे लिखा, 1 माइनस टू 1। अभी यहाँ पे क्या है, x1। x1 में क्या कोएफिशिएंट है, कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1। यहाँ पे x2 में क्या है, -2, तो यहाँ पे -2 लिखा। x3 में क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1। नेक्स्ट देखो 2x2, डायरेक्टली x2 है, x1 कहाँ पे नहीं है, तो x1 नहीं है तो क्या है 0। देन 2x2, सो x2 पे क्या है 2। देन -8x3, तो -8, सिर्फ कोएफिशिएंट लिखने। 5x1, 5, डायरेक्टली -5x3 है, तो x3 की जगह पे हम -5 लिखेंगे। x2 दिया नहीं है तो मतलब 0, दिया नहीं होगा तो 0। अगर सिर्फ x2 x3 ऐसा लिखा होगा तो 1। ओके, कंफ्यूज मत होना। फिर x1 x2 x3 a लिखा, फिर उसके बाद x कैसे लिखेंगे, x1 x2 x3 इस तरह से। ओके, उसके बाद ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में लिखना है, तो b कैसे लिखेंगे, 0 8 10, जो इज इक्वल टू के बाद का है, मतलब ये 0, ये 8 और ये 10। ओके, इज इक्वल टू के बाद का सारा बी में लिखेंगे। ओके, 0 8 10 इस तरह आपको राइट द गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में आपको लिखना है। वेयर ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, जैसे कि मैंने आपको बताया सारे के सारे कोएफिशिएंट लिखने। एक्स में हमने लिखे मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, जो कि x1 x2 x3 है, वेरिएबल लिखने। बी की जगह पे हमें लिखना है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म होती है इज इक्वल टू के बाद की। ओके, चलो तो फिर इसे सॉल्व करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसीडर करना है और उस पे रो इक्विवेलेंट फॉर्म उसका निकालना है, और बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। अभी रो इक्विवेलेंट फॉर्म आपको पता है, रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म भी पता है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म भी पता है, और रो ऑपरेशंस भी कैसे करने हैं वो भी आपको पता है। मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, आपके कॉलेज में भी पढ़ाया होगा, इतना कुछ हार्ड नहीं। ओके, सो लेट्स कंसीडर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऐसे लिखा जाता है। ओके, देन अभी ए मैट्रिक्स हमने लिखा, लाइन दी, उसके बाद यहाँ पे बी लिखा 0 8 10। ये देखो यहाँ पे हमने बी को कंसीडर किया, तो 0 8 10 इस तरह से आपको लिखना है। अभी इसे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम रो ऑपरेशंस करेंगे, r3 5 r1, उसके बाद हमें ऐसा मिलेगा, उसके बाद r2 डिवाइड बाय 2, देन वी गेट दिस मैट्रिक्स, देन r3 10 r2, देन वी गेट दिस मैट्रिक्स। ओके, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या करते हैं, तो आपको पता है ना, पिवोट एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट 0 करते हैं। देन R3 डिवाइड बाय 30 वी गेट दिस मैट्रिक्स, दिस इज रो इक्विवेलेंट फॉर्म। हमें रो इक्विवेलेंट फॉर्म में फॉर्म मिल गया है। रिराइट इट इन सिस्टम, फिर से हमें अभी जो रो इक्विवेलेंट फॉर्म मिला है उसे सिस्टम में लिखना है। वो कैसे लिखना है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या है 1 -2 1, सो हम क्या लिखेंगे x1 मतलब 1 -2x2 प्लस x3, 1 -2 1 आ गया, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म देखो 0, बी मैट्रिक्स क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे 0 है तो x1 नहीं आएगा, सिर्फ x2 -4 x3 इज इक्वल टू 4। देन 0 0, सिर्फ x3 इज इक्वल टू -1, यहाँ पे लिखा है देखो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और लास्ट में क्या है x3 इज इक्वल टू -1। अभी x3 इज इक्वल टू -1 तो हमें मिल गया, x3 की वैल्यू हमें मिल गई है। तो लास्ट स्टेप में क्या है, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी। तो x3 मिल गया, तो x3 हम आप कहाँ पे डाल सकते हो, सोचो जरा, सोचो सोचो, सोचोगे तो सॉल्व कर पाओगे, अगर सोचोगे नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। नोटबुक पेंसिल लो, सॉल्व करो, x3 की वैल्यू कहाँ पे पुट कर सकते हो, सोचो सोचो, दिमाग चलाओ। देखो इक्वेशन 2 में हम x3 की वैल्यू डाल सकते हैं, अगर इसमें x3 डालेंगे तो x2 मिल जाएगा, इजी है। पुट x3 इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, सो हमने इक्वेशन 2 में x3 डाला तो हमें x2 क्या मिला 0। सो पुट x2 एंड x3 दोनों की वैल्यू हम अगर हम इक्वेशन 1 में डालेंगे तो हमें x1 मिल जाएगा, x1 मिला 1। So set is x1 x2 x3 is equal to 1
0 माइनस 1, x1 x2 x3 की वैल्यू हमें मिल गई। सो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ओके, सिस्टम के पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब हर एक वेरिएबल का अलग अलग सॉल्यूशन। तो क्या हुआ, ये यूनिक सॉल्यूशन हुआ एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ओके, समझ में आया ना, यूनिक सॉल्यूशन क्यों बोला, क्योंकि x1 की वैल्यू अलग है, x2 की अलग है, x3 की अलग है, तो यूनिक है ना, सब यूनिक है। ओके, एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सो अभी कंसिस्टेंट क्यों बोला मैंने, मैंने आपको कंसिस्टेंट सिस्टम की डेफिनेशन बताई, तब उसमें बताया अगर सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन हुआ या फिर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हुए तो सिस्टम कंसिस्टेंट होती है। तो यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो सिस्टम कैसी होगी, कंसिस्टेंट। अभी हम इनकंसिस्टेंट या फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम या फिर इनफिनाइट इनफिनाइट सॉल्यूशन का एग्जांपल देखते हैं। ओके, दिस इज गिवन सिस्टम, फिर से वही, राइट सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में सिस्टम लिखी गई। देन कंसीडर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसीडर किया, कैसे किया, ए मैट्रिक्स लिख लिया, देन उसमें बी मैट्रिक्स मर्ज कर दिया, देन फिर से रॉ ऑपरेशन किए, यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट फॉर्म मिला, फिर से सिस्टम में लिखा। सो अभी हमें क्या किया, जब हम सिस्टम में लिखने जा रहे थे तो यहाँ पे सारे जीरो है, x1 x2 x3 सारे के सारे जीरो है। सो जीरो इज इक्वल टू नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, सो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। सो अगर सिस्टम में सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा तो जीरो इज इक्वल टू नॉट पॉसिबल ना, जीरो इज इक्वल टू 2 इज नॉट पॉसिबल, ये कहीं पे भी पॉसिबल तो नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। हमने ऊपर देखा, यहाँ पे आओ, कहाँ पे गया, यहाँ पे देखो, नो सॉल्यूशन, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, नो सॉल्यूशन, देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अभी फिर से नीचे आओ, कहाँ गया नो सॉल्यूशन वाला हमारा, ओके, यहाँ पे not possible because system has no solution. Why system has no solution, zero is not equal to, zero is equal to 2 not possible। ऐसा कहीं पे सुना है क्या, जीरो इज इक्वल टू 2, अगर वहां पे x इज इक्वल टू 2 होता तो भी हम मान लेते, लेकिन जीरो इज इक्वल टू 2 नॉट पॉसिबल। सो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अगर सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम कैसी हुई, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हुई। आसान है ना, कुछ इतना हार्ड नहीं। ओके, आप जरा फोकस करो, आपको जल्दी समझ में। देन थर्ड एग्जांपल देखो, फिर से सिस्टम दी गई है, फिर से हमने मैट्रिक्स फॉर्म में सिस्टम लिखी, देन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसीडर किया, देन रो ऑपरेशंस परफॉर्म किए, यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट फॉर्म मिला, रो इक्विवेलेंट फॉर्म, उसके बाद हमने सिस्टम में लिखा। अभी यहाँ पे हमें दो इक्वेशन मिले, क्योंकि थर्ड रो पूरी की पूरी जीरो है। ओके, तो हमें दो इक्वेशन मिलने के बाद अभी हम दो इक्वेशंस में सॉल्व तो नहीं कर सकते, हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू तो चाहिए सॉल्व करने के लिए, बराबर क्या नहीं। सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 7, देन क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगा, व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ वेरिएबल, मतलब जब 3 वेरिएबल हो और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने, 2, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ वेरिएबल है लेकिन हमें निकालने कितने, 2। देन x3 इज फ्री वेरिएबल, सो x3 क्या हुआ, फ्री वेरिएबल, क्योंकि x3 कहीं पे है, यहाँ पे x3 के सारे जीरो है, तो x3 क्या हुआ, फ्री वेरिएबल। देन हम क्या कंसीडर करेंगे, x3 को हम कुछ भी वेरिएबल लेंगे, फ्री वेरिएबल मतलब क्या, आप a टू z में से कुछ भी ले सकते हो, तो हमने x3 इज इक्वल टू t लिया, t बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर। पुट x3 इज इक्वल टू t इन इक्वेशन 2, अगर हम इक्वेशन 2 में t पुट करेंगे x3 की जगह पे तो हमें ये मिलेगा, x2 इज इक्वल टू 1 माइनस 4t इज इक्वल टू 7। पुट x3 इज इक्वल टू 2, ए 2 ही आ रहा है मेरे, सॉरी, x3 इज इक्वल टू t एंड x2 इज इक्वल टू दिस इन इक्वेशन 1। अगर हम ये दो वैल्यू 1 में पुट करेंगे तो ऐसा आएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 बोथ साइड्स। जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो हमें x1 मिलेगा, सॉल्यूशन सेट इज x1 x2 x3, ये मिल रहा है। ओके, वेयर t बिलोंग्स टू r, सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। वैसे हम अगर सॉल्व करते गए तो हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, हमने t की जगह दूसरा कुछ डाल दिया तो दूसरा मिल जाएगा। ओके, तो हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो सिस्टम कैसी हुई, कंसिस्टेंट, क्योंकि डेफिनेशन में बताया अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो सिस्टम कैसी होती है, कंसिस्टेंट। ओके, होप दैट आपको समझ में आ रहा हो, अगर नहीं समझ में आया तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो या फिर कमेंट में डाउट पूछ लेना क्या नहीं समझ में आया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज क्रैमर्स रूल। अभी क्रैमर्स रूल से हमें सिस्टम सॉरी डिटरमिनेंट फाइंड करना है।
डिटरमिनेंट नहीं सॉरी सिस्टम हमें सॉल्व करनी। देखो देखो बताता हूँ। लेट ए बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन फॉर एनी बी बिलोंग्स टू आर दे द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ एक्स ए एक्स इज इक्वल टू बी इज गिवन बाय। डेफिनेशन छोड़ो मैं बताता हूँ। ये हुआ क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला। ओके, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जितना हो उतना हमें कैसे मतलब उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। ओके, ये फॉर्मूला आप लिख लेना या फिर नोट्स में क्लासरूम पे अपलोड करने वाला हूँ। यूज द क्रैमर्स रूल टू सॉल्व गिवन सिस्टम। ये एग्जांपल बहुत बड़ा होता है क्रैमर्स रूल का, नहीं क्रैमर्स रूल का नहीं, एलयू का बड़ा होता है, सॉरी सॉरी एलयू डिकम्पोजिशन अभी बाकी। सो हमें ये दो सिस्टम दिए गए हैं तो हम इसे Ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखेंगे। देन A इज इक्वल टू ये ए मैट्रिक्स हुआ। देन A1B मतलब ये जो बी मैट्रिक्स है उसे हम रिप्लेस करेंगे A1 मैट्रिक्स में। ये जो है 3 - 5 इसकी जगह हम बी मैट्रिक्स से रिप्लेस करें 6 8 और -2 4 जैसे कहते हैं। ए टू बी में क्या करेंगे, ये जो है -2 4 उसकी जगह 6 8 रिप्लेस करेंगे और 3 - 5 वैसे का वैसा 6 8 मतलब बी मैट्रिक्स से हमने 6 8 लिया। ओके, आगे देखो। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये हुआ। डिटर्मिनेंट ऑफ A1 ऑफ बी, A1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 40 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A2 मैट्रिक्स 54। देन x1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये फॉर्मूला मैंने क्रैमर्स रूल का बताया। सो हम 40 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 20 आएगा। x1 की वैल्यू क्या मिली 20। x2 इज इक्वल टू A2 डिवाइड बाय A 54 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 27। सो x1 एंड x2 इज इक्वल टू 20, 27। एकदम इजी है क्रैमर्स रूल, एकदम इजी है, एकदम चिंदी है चिंदी। हमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। ओके, आगे बढ़ते एलयू फैक्टराइजेशन मेथड। अभी एलयू फैक्टराइजेशन लास्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, शायद 5 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स के लिए एग्जाम्पल आ सकता है क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए 3 to 4 पेज लगते हैं, 3 पेज मिनिमम। ओके, तो 5 to 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़ो, हम इसे धीरे धीरे पढ़ते हैं। To solve the system Ax is equal to B, put A is equal to Lu in matrix equation। हमें Ax is equal to B सिस्टम सॉल्व करने के लिए हमें A is equal to Lu पुट करना पड़ेगा। So Ax is equal to Lu x is equal to B is equal to L into Ux is equal to B। ये हुआ इक्वेशन 1। पुट Y is equal to Ux। अभी इसमें y इज इक्वल टू यू एक्स हमने अगर पुट किया तो इक्वेशन 1 बिकम्स एल वाई इज इक्वल टू बी। ओके, यू एक्स इज इक्वल टू वाई तो यू एक्स की जगह हम y लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि y इज इक्वल टू यू एक्स है। सो इक्वेशन क्या फॉर्म हुआ, एल वाई इज इक्वल टू बी। ओके, हाईलाइट भी कर देता हूँ, एल वाई इज इक्वल टू बी, ये हमें मिला। फर्स्ट सॉल्व एल वाई इज इक्वल टू बी फॉर वाई। वाई के लिए हमें क्या सॉल्व करना है, एल वाई इज इक्वल टू बी। देन सॉल्व यू एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर एक्स। ओके, ये याद रखना क्योंकि हमें नीचे एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। ओके ओके, अभी ठीक है। देन अभी एग्जांपल देखते हैं। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन सिस्टम बाय एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। ये तीनों सिस्टम दिए गए, इसे हमें एलयू डिकम्पोजिशन वैसे हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले। देन ए इज इक्वल टू, देन रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे रो ऑपरेशन से। ये हुआ रो इक्विवेलेंट फॉर्म, सॉरी 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 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा। उसके बाद हम रो ऑपरेशन से एल और यू मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। रो इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं, सॉरी सॉरी। ओके, सो हमें यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिला, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिला। अभी लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बताया है, 12th में भी हुआ है, 11th में भी हुआ है, अभी फिर से नहीं बताऊंगा। और हमने एलयू डिकम्पोजिशन मेथड थी हमारे जो सेकंड चैप्टर में, उसमें भी हमने देखा है। ओके, सो अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिला। ओके, ये हुआ लोअर ट्रायंगुलर और ये हुआ अपर ट्रायंगुलर। देन सॉल्व एल वाई इज इक्वल टू बी, मैंने आपको अभी बताया। पहले हमें फॉर y के लिए एल वाई इज इक्वल टू बी सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये एल वाई इज इक्वल टू बी। देन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स मिला। देन या इसे देखने के बाद y1 इज इक्वल टू 7। देन इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 यहाँ से ही उठा है। इक्वेशन इक्वेशन 2 देखो, -1 मतलब -y1, 1 मतलब y2,
यहाँ पे 0 है तो y3 नहीं आ सकता, इज इक्वल टू 5। देन 2y1, यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू y1, देन माइनस 5y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 2 एंड 3 यहाँ से उठाए, पुट y1 इज इक्वल टू -7 इन इक्वेशन 2, यहाँ से -7 लिया है। हाँ, इक्वेशन 2 में हमें y1 इज इक्वल टू -7 पुट करना है। अगर हम वहां पे पुट करेंगे तो y2 इज इक्वल टू -2 मिलेगा। देन y1 एंड y2 की वैल्यू हम अगर इक्वेशन 3 में पुट करेंगे देन y3 इज इक्वल टू 6 मिलेगा। अब ये बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और प्लस माइनस इज इक्वल टू से सॉल्व करना है। देन y इज इक्वल टू y1 y2 y3 की वैल्यू हमें मिल गई। देन हमें क्या सॉल्व करना है, ux इज इक्वल टू y फॉर x। तो हम ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये x और ये y, ओके। देन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फिर से लिखेंगे। देन ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 देखो 3a माइनस 7b माइनस 2c इज इक्वल टू -7, ये तो 0 है, माइनस 2b माइनस c इज इक्वल टू -2, ये भी 0, ये भी 0, माइनस c इज इक्वल टू 6। सो c इज इक्वल टू 6 -6 मिला हमें। सो पुट c इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 2। जब हम c इज इक्वल टू -6 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें b मिलेगा इज इक्वल टू 4। देन पुट c इज इक्वल टू -6, b इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें a मिलेगा। इस तरह से आपको LU डिकम्पोजिशन से सिस्टम सॉल्व करनी है। देखो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ। यहाँ से शुरू हुआ पूरा एक पेज, दूसरा पेज और ये तीसरा पेज, 3.5, ओके, समथिंग 3.5 पेज का एग्जाम्पल, मिनिमम 3 पेज पकड़ लो अगर आपकी हैंड राइटिंग छोटी है तो, ओके। यहाँ पे हमारा 4th चैप्टर भी एंड होता है, ओके। सो अभी आप देख लो, 3rd चैप्टर भी एंड, 4th चैप्टर भी एंड, पूरा का पूरा मैट्रिक्स अलजेब्रा यहाँ पे खत्म। ये दोनों चैप्टर की पीडीएफ आपको गूगल क्लासरूम पे मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे गूगल क्लासरूम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल है। ईवीएस इंग्लिश, इंग्लिश अभी तक स्टार्ट नहीं किया, इंग्लिश भी जल्दी में स्टार्ट करूंगा। देखो मैथमेटिक्स हमने लेट स्टार्ट किया लेकिन जल्दी खत्म हो गया। सी और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बाकी है, सी प्रोग्रामिंग के कोड बाकी है, सिर्फ कोड बाकी, थ्योरी मैंने खत्म कर दी, कोड बाकी है वो भी मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक चैप्टर बाकी है, वो हम दिवाली के बाद देखेंगे, अभी नहीं। टेंशन मत लो, 15 नवंबर के पहले आपका सारा का सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। आपकी एग्जाम 1 दिसंबर से थ्योरी एग्जामिनेशन, अभी तक टाइम टेबल नहीं आया, एक्सपेक्टेड टाइम टेबल 1 दिसंबर है। अब 1 दिसंबर ही पकड़ के चलो, मैं 15 नवंबर से आप 15 नवंबर के पहले आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 20 नवंबर से स्टार्ट होने, 20 नवंबर से आगे 20 या फिर 25 कुछ तो होगा। आपके कॉलेज का शेड्यूल आया होगा शायद 25 से, ओके। तो देख लो मैथ्स का सिलेबस यहाँ पे, मैट्रिक्स अलजेब्रा का सिलेबस यहाँ पे खत्म हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर कुछ डाउट है तो पूछ लेना, ओके। और गूगल क्लासरूम को ज्वाइन नहीं किया तो क्या करो, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो गूगल क्लासरूम, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लासरूम कोड है, वो कोड आप उस ऐप में डालो, ज्वाइन क्लास करके ऑप्शन होगा, ज्वाइन क्लास बोलो और वहाँ पे क्लासरूम कोड डालो तो आप हमारे क्लासरूम को ज्वाइन कर लोगे। वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल है, ओके। जो भी होगा, सी, इलेक्ट्रॉनिक्स, पाइथन वगैरह, ईवीएस, मैट्रिक्स अलजेब्रा, सारे के सारे सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है। और हाँ, कुछ बच्चों को नोट्स मिलते नहीं, उसमें उसमें स्क्रॉल करो ऊपर नीचे, देखो ठीक से पढ़ो, वहाँ पे फोल्डर बना हुआ है, इसका अलग, इलेक्ट्रॉनिक का अलग, मैट्रिक्स का अलग, सारे के सारे फोल्डर है उसमें। देखो आप स्क्रॉल करो, उस पर क्लिक करो, थोड़ा वेट किया करो, नेटवर्क की वजह से जल्दी पीडीएफ नहीं दिखती, पीडीएफ नहीं दिखी तो आप बोलते हो नोट्स नहीं है, नोट्स से थोड़ा वेट करो 1-2 मिनट अगर पीडीएफ नहीं दिख रही होगी तो, हाँ, ओके। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर मैट्रिक्स अलजेब्रा, ओके। यहाँ पे हम रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ तो देखेंगे, या फिर ईवीएस। हाँ, ईवीएस के 2 चैप्टर बाकी है, एक चैप्टर मैंने खत्म किया है, 3 चैप्टर है टोटल, ज्यादा कुछ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, मैं आईएमपी भी दे दूंगा और रिवीजन के भी लेक्चर आएंगे। मैथ्स के लिए आएगा, इलेक्ट्रॉनिक के लिए आएगा, सी के लिए आएगा, सी प्रोग्रामिंग, आईएमपी क्वेश्चंस भी दूंगा, आप टेंशन मत लो। 15 नवंबर से पहले आपको मैं फ्री कर दूंगा, ओके। तब तक सारा सिलेबस हो जाएगा, दिवाली में भी कुछ वीडियो आएंगे, okay. So that's it for today, this is sufficient for today. If you like this video, like this lecture, like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends.
If you have any doubt, please ask in comment section or DM me on Instagram. Okay, so that's it for today. Till then, tatas, bye bye.